हेलो गाइस, आप जानते हैं कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो या क्लास 12 के हो, वो आप देख रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कितने लेंदी हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड है और कितने घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। ये जो मैटर है कोई आम मैटर नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। ये इतना सीरियस मैटर है कि इस सवाल को पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है और जो सांसद हमारे थे NK चंद्रन जी ने शिकायत भी किया है कि CBSE कैसे स्टूडेंट के साथ पेश आ रहा है, कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उन्हें दे रही है और उनके जो आंसर शीट जो दे रही है, जो आंसर की प्रोवाइड कर रही है CBSE, उसमें कितने सारे मिस्टेक्स आ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में हम लोग। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि स्टूडेंट जो है ऐसे कंडीशन से गुजर रहे हैं कि बच्चे डिस्करेज हो रहे हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस मैटर है। देखिएगा आगे इस वीडियो में मैं उसको एक क्लिप डाल रहा हूं जिसको आप देखिएगा उन्होंने क्या क्या कहा है। I have given the notice of adjournment motion. I am thankful to the Honorable Speaker for providing me an opportunity to speak on this zero hour. Sir, my zero hour submission is regarding the CBSE exams which took place yesterday. Sir, you may kindly see class 12 maths board examination of CBSE on 6th December 2021 was highly tough, very lengthy and even out of syllabus. Sir, most of the questions which was put yesterday in the CBSE maths examination was out of syllabus. Also, the students are totally depressed and mentally down, and that may affect their future prospects also. And similarly, sir, on 3rd December, English examination of the CBSE English examination of this plus 2 or this class 2 also very tough and out of syllabus. And it is creating much havoc among the students. They are depressed and it is totally affecting their mental psyche also. So it is very important to note that CBSE 12th examination is very important. The results are very important as far as the higher education is concerned. All the higher education for the professional courses, CBSE, this 12th standard is very important. So kindly address the genuine grievance of the students by making the evaluation process very liberal. Last year also same thing has happened and the government has taken a very lenient view by taking the evaluation process very liberal. So I urge upon the Ministry of Education. Sir, at the same time, you may kindly see that is a state syllabus, it is very easy, and ICS syllabus, it is very easy, exams are very easy. As far as the CBSE exams is concerned, it is very tough, lengthy, out of syllabus. Hence, I urge upon thousands of students are in difficulty, even the mental psyche is in problem. Sir, I am concluding. So I urge upon the government, please take immediate measures so as to redress the grievance of the students by making the evaluation very liberal. With these words, I conclude. Thank you very much. अब कुछ लोग स्टूडेंट के फेवर में आ रहे हैं, यानी जैसे कि ये NK चंद्रन साहब जो हैं, NK प्रेमचंद्रन साहब, ये आए, उसी तरह बहुत सारे दूसरे भी लोग भी हैं जो स्टूडेंट के फेवर में आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट के फेवर में कोई तो खड़ा हो रहा है, तो ये चीज़ है। तो खड़े कौन हो रहे हैं, आइए देखते हैं। उसमें से जो है, जो स्टूडेंट के लिए एक उम्मीद बनी है कि चलो कोई तुम्हारे फेवर में आ रहा है, तो NCCS नेशनल काउंसिल ऑफ CBSE स्कूल्स के सेक्रेटरी जनरल इंदिरा राजन जी ने CBSE को अप्रोच किया और डिमांड किया है कि जो इनकी कॉपी चेकिंग हो वो लिबरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्टली हो, लिबरली होनी चाहिए। ये डिमांड सिर्फ इंदिरा जी ही ने नहीं किया, बल्कि CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स ने भी किया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे और डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चन दिए गए थे। और आप देख रहे होंगे कि जो हिंदी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, स्टूडेंट के जो हिंदी के एग्ज़ाम हुए हैं, उसके जो आंसर की दिए हैं, जब आंसर की आए, जब उसका इवैल्यूएशन हो रहा था, तो जो एग्ज़ामिनर थे उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं।
तो अब इन्फॉर्मेशन दिया गया सीबीएसई को, तो सीबीएसई ने फिर से कहा कि अच्छा रुकिए मैं दूसरा इसको चेक करवाता हूँ। जब उन्होंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि रुकिए जब तक मैं कह रहा हूँ अभी कॉपी को इवैल्यूएट नहीं करें। और 2 घंटे वेट करने के बाद फिर उन्होंने एक नया आंसर की प्रोवाइड किया, लेकिन उसमें भी कई गलतियाँ थी जो रह गई थी। ये कैसा है, कैसे कंडीशन है, सीबीएसई क्या कर रही है? सोचने वाली बात है कि बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, बच्चे रोने लगते हैं, उनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो सामने देखकर आपको महसूस हो जाएगा कि बच्चे कितने डिप्रेस हैं, कितने डिस्करेज हुए हैं इस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में। उन्होंने सोचा क्या, मेहनत क्या किया और उनको रिज़ल्ट क्या मिला है, ये उनके फेस से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह क्लास 12 की जो फिज़िक्स के जो पेपर थे उसका इन्फॉर्मेशन ये आ रहा कि वो लीक हो चुका है। और एग्ज़ाम के बाद जो स्टूडेंट हैं उनका फीडबैक कुछ इस तरह से आ रहा कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ रहे हैं या फिर एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं। तो ये था इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन। सबसे अच्छी खबर इसमें ये थी कि कुछ लोग इस स्टूडेंट के फेवर में आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे एनसीसी एसके जनरल सेक्रेटरी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।